Very warm good afternoon to all the attendees. Thank you so much for joining us today. We are just about to start our session. Musa Salim, yes, you will receive the recording of this webinar once the session is over. It takes around a day's time for system to generate the recording and send it to you. So don't worry, you will receive this recording via email through Zoom tool. Anonymous attendee, really glad to know that you were part of Business Hours. Thank you so much for joining us here for this session as well. Kapil Bhasin, email will be sent to you via email through Zoom tool. Muzam, whichever email ID you have registered for this webinar today, in the same email ID you will receive the recording. Mr. Ravi Sen, to know how to increase your business sales, I would recommend you to attend a growth webinar. Today we are only going to talk about advertising. I would request everyone to please hold on to your question. We'll have our expert Umang Jani, who would be addressing today's presentation, as well as he will take up the question and answer round also. We will start this Q&A session shortly. I would request you to just wait for another minute because few attendees are still joining in. We will start the session soon. Oppo A5 आज का सेशन जो है एक इंग्लिश सेशन है, बट अगर आपको कोई डाउट है हिंदी में आप जानना चाहते हैं, आप क्वेश्चन आंसर राउंड के दौरान अपने क्वेश्चंस जो हैं हमें हिंदी में भेज सकते हैं. हमारे एक्सपर्ट आपको हिंदी में आंसर कर देंगे. अनोनिमस अटेंडी, आपका क्वेश्चन है हाउ टू क्रिएट एडवर्टाइजिंग. आपको अभी प्रेजेंटेशन में दिखाया जाएगा कि किस तरह से होता है. Mr. Harendra Gusain, I think you are talking about making your product more visible. Advertising is one medium of making your product more visible.
I would recommend you to attend a webinar on visibility. There, over there, we explain how to use search keywords effectively. So do attend that webinar. Mr. Manish KR, for growth webinar, the recording will come to your email ID through Zoom tool. अनु बुद्धिराज, आपको वीडियो की जगह स्क्रीन दिखेगा. अगर आपको ब्लू स्क्रीन दिख रहा है विद फ्लिपकार्ट एडवर्टाइजिंग, दैट मीन्स वीडियो इज विजिबल टू यू. Requesting all the attendees, please hold on to the questions. We are just about to start our session along with our expert, Mr. Sanjay Yadav. It will start in 1 minute. Rinkesh Sonani, please attend a growth webinar. Hi Umang, am I audible to you? Hey, hi Riya. Yes, you are. So I'm just about to take a poll. Dear attendees, I'm sending you a poll in order to understand if you all can see the screen and hear my voice. Also, I'm sending you one more question. We need to understand if you have completed Flipkart advertising certification course or not. So I'm sending you these two questions on poll, requesting all the attendees, please share your responses as yes or no. If the screen is visible and my voice is audible to you, please click on yes. If you're facing any issue, click on no. And if you have completed your Flipkart advertising certification, then click on yes. If you have not completed it yet, then click on no and share your responses with us soon. Riya? Yes, Umang. Yeah, I think I'll just take the screen if it's okay. Sure, sure. Thank you. Riya, I hope my screen is visible. Sellers, अगर आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है और मेरी ऑडियो क्लियर है तो प्लीज अपने हाथ रेज करके थोड़ा मुझे कंफर्म कर दीजिए.
ओके, ग्रेट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सेलर्स आज हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सो आज हम लोग एडवर्टाइजिंग के बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम 10 मिनट थोड़ा स्केड्यूल से लेट चल रहे हैं, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रेजेंटेशन हम ये टाइम को कवर कर लेंगे। तो आई बिलीव हमने लास्ट 2-3 हफ्तों में बहुत सारे सेशंस इसको लेके किए हैं कि एडवांस में प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करते हैं, हम लोग कहाँ से ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, कैंपेन को कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, हम लोग एलआईडी को कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे। तो हमने लास्ट 2-3 वीक में काफी ज्यादा एडवांस सेशंस किए हैं, नए जो फीचर लॉन्चेस हुए उनके ऊपर सेशंस किए हैं। बट अब सिंस हम लोग फेस्टिव सीजन के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और ऑलमोस्ट द फेस्टिव सीजन हैज जस्ट स्टार्टेड, बिकॉज आई थिंक कल 1 अक्टूबर और कल से ही हम जो है ऑफिशियली एक फेस्टिव सीजन का उसमें चले जाएंगे। बट तो कुछ कुछ चीजें हैं कि आज बहुत सारे हमारे साथ ऐसे सेलर्स भी होंगे, जिन लोग अभी भी नए हैं, जो लोग शायद फेस्टिव को टारगेट करके अपना प्रोडक्ट प्रमोट करने का कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे कि एडवर्टाइजिंग आपके लिए क्या कर सकता है, एडवर्टाइजिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, व्हाई शुड वी बी डूइंग व्हाट वी आर आस्क्ड टू डू, राइट। क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे सेलर्स होंगे जिनका कोई ना कोई डिस्कशन होता होगा फ्लिपकार्ट के एंड से किसी से एज अकाउंट मैनेजर या कुछ भी, अगर आपका साथ कोई जुड़ा हुआ है या फिर नहीं भी है तो आपको लगता होगा व्हाई शुड आई डू इट, राइट। तो आज हम लोग वो व्हाई को आंसर करेंगे और साथ ही साथ आज हम लोग थोड़ा देखेंगे कि बेसिकली अगर हमें ऐड करना है तो हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। तो हमने सर्टिफिकेशन के बारे में आपसे एक पोल लिया है। सो ये सर्टिफिकेशन बेसिकली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें हमने एक मॉड्यूल किए हैं जिसमें टोटल टाइम आपको लगेगा 45 to 60 मिनट्स, 1 घंटे के अंदर हो जाएगा। बट इसमें हमने जितना हो सके एडवर्टाइजिंग क्यों करनी है, कैसे करनी है, राइट वे क्या है, कहाँ ध्यान रखना है, बजटिंग कैसे होनी है, तो ये सारी चीजों का हमने उस पे डिटेल में आपको समझाया कि व्हाई यू शुड बी डूइंग इट। तो डेफिनेटली जिन लोगों ने नहीं किया है आप लोग प्लीज इसको कर लो एक बार, ठीक है, तो आपको वो काफी हेल्प करेगा। तो ये कंप्लीट करने के बाद बेसिकली फ्लिपकार्ट एड सर्टिफिकेशन का आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है, तो ये आपके एड्रेसेस पे हमारे एंड से आपको हार्ड कॉपी कुरियर हो जाएगी। तो या ओके, तो आज का सेशन का जो की टेक अवेज है वो है बेनिफिट्स ऑफ पीएलए या फिर लिस्टिंग एड्स या एडवर्टाइजिंग जो हम इसको बोलते हैं, तो उसके बेनिफिट्स क्या है, कैंपेन कैसे क्रिएट करनी चाहिए, टिप सक्सेसफुल कैंपेन, अगर मुझे अच्छे से कैंपेन्स क्रिएट करना है तो उसके लिए मुझे कौन सी चीजें हैं जो ध्यान में रखनी होंगी। रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम लोग एडवर्टाइजिंग करते हैं, बिकॉज एडवर्टाइजिंग कैंपेन सेट करना एक चीज होता है बट उसको सही से चलाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो सही से तभी चल पाएगा जब हम सही से अपने रिपोर्ट्स को रीड करेंगे और रिपोर्ट्स का जो इंटरप्रिटेशन है वो हम उसको जज करेंगे। तो वंस हम लोग एक रिपोर्ट को सही से इंटरप्रेट कर पाए या वो रिपोर्ट से हम लोग कुछ लॉजिक बना पाए, तभी जाके हम वो नेसेसरी चेंजेस अपने कैंपेन में डाल सकेंगे और वो कैंपेन अच्छे से परफॉर्म करेगा। हम स्मार्ट आरओआई के बारे में भी डिस्कस करेंगे, बट आज हम स्मार्ट आरओआई के बारे में सीखेंगे नहीं। सिंपली एक ही रीजन है, क्योंकि हमारा जो फेस्टिव सीजन है इसमें अगर आप देखेंगे कि इसमें सीपीसी कैंपेन्स का रोल जो होता है वही सबसे ज्यादा होता है। स्मार्ट आरओआई एज अ प्रोडक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है या फिर उतना उसको विजिबिलिटी नहीं मिलते हैं। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हम जब फेस्टिव सीजन के बाद जब हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे तब हम लोग फिर से स्मार्ट आरओआई के बारे में बातें करना चालू करेंगे, या फिर उसको क्यों करना है, कैसे करना है, उसकी बेनिफिट्स या उसके एग्जीक्यूशन के बारे में ज्यादा सीखेंगे। ओके, तो ये कुछ आंकड़े हैं जो बेसिकली आज हमारे सिस्टम पे लाइव है। तो ये थोड़े महीने पुराने के हैं, इनफैक्ट ये प्री कोविड है, पोस्ट कोविड का अभी भी चल रहा है और हम लोग प्रोबेबली इस साल के एंड में वो फर्निश करेंगे। तो तकरीबन 15,000 सेलर्स, 35,000 कैंपेन और 8 लाख प्रोडक्ट्स। तो ये होता है, ये कभी भी आप अगर फ्लिपकार्ट पे आएंगे तो इतने चीजें होती है जो लाइव होती है एडवर्टाइजिंग के माध्यम से। सो 15 से 20,000 सेलर आज जैसे हम बात कर रहे हैं, जो ऑफिशियली कोटेड नंबर नहीं है, बट तकरीबन 20-22,000 सेलर है जो हमारे साथ एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। एक्टिव कैंपेन्स फेस्टिव सीजन में तकरीबन 70,000 हो जाएंगी, तो 2 टाइम्स बढ़ जाती है। एक्टिव एलआईडीज भी 2 मिलियन के आसपास चली जाएगी। बट इससे यही चीज समझ में आता है कि जो सप्लाई है या जो अपॉर्चुनिटी है वो कम नहीं है, अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि अगर बड़े ब्रांड्स एडवर्टाइज कर रहे हैं तो सेलर्स को दिक्कत होगी उनके साथ compete करने में। फ्लिपकार्ट एडवर्टाइजिंग बहुत लेवल प्लेइंग फील्ड है, जहाँ पे एक ब्रांड के प्रोडक्ट को और एक सेलर के प्रोडक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंस मिलता है विद रिगार्ड्स टू
वो प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा है, उस प्रोडक्ट का प्राइस कैसा है, वो प्रोडक्ट का क्लिक रेट्स, उसके जो कन्वर्शन है, उसके जो कैटलॉग है वो कैसी है। तो ऐसा डिपेंड नहीं करता है कि कोई ब्रांड नेम की वजह से जो वेटेज होता है वो कहीं बायस्ड नहीं है। तो सबके लिए कुछ ना कुछ है। तो ये फेस्टिव सीजन में हमें ये इंश्योर करना है कि हम कितना ज्यादा इसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कितना ज्यादा इसका रिटर्न्स ले सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एडवर्टाइजिंग सेलर्स को इम्पैक्ट कैसे करता है। तो एडवर्टाइजिंग दो सेलर्स, हर सेलर के लिए इम्पोर्टेंट होता है, भले ही वो नए सेलर हो या भले ही वो एस्टैब्लिश सेलर हो। तो एडवर्टाइजिंग आपको कैसे इम्पैक्ट करेगा ये समझने के लिए हमने दो सेलर के सेगमेंट्स लिए हैं। हमने एक सेगमेंट को वो सिलेक्ट किया है जो लोग एडवर्टाइज नहीं करते, और हमने एक सेलर को मतलब जो लोग नए हैं प्लेटफॉर्म पे, और एक सेलर सेट ऐसा है जो ऑलरेडी कुछ टाइम से प्लेटफॉर्म पे है और उनमें से उनका मिनिमम 5 लाख रुपया वो लोग सेल्स कर रहे हैं। अब जो हर टाइप के सेलर है, जो नए हैं या फिर जो एस्टेब्लिश सेलर्स है, इन दोनों में हमने एक सेगमेंट को सिलेक्ट किया और उनपे एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स हमने इनिशिएट करवाया। अब जब 6 महीने बाद हम देखते हैं कि नए सेलर और जो एस्टेब्लिश सेलर्स है उनका अगर हम लोग डिफरेंस देखें, तो नए सेलर के लिए ऑलमोस्ट 2 टाइम्स ज्यादा सेल्स उनको मिलती है अगर वो एडवर्टाइजिंग करते हैं वर्सेस अगर वो एडवर्टाइजिंग नहीं करते हैं, उस हिसाब से। और जो एस्टेब्लिश सेलर्स भी है, जहाँ पे 5 लाख के ऊपर ऑलरेडी सेलर अगर कमा रहा है महीने का, उसके लिए भी एक नॉर्मल टाइम पे अपना बिजनेस 50% तक बढ़ाने का अपॉर्चुनिटी है 6 महीने के ऊपर। तो ये बहुत बेसिक मीन्स ऑफ एडवर्टाइजिंग है। मतलब अगर आप नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस बेसिकली थोड़ा स्लोली ग्रो करेगा, और अगर आप एस्पिरेशनल है और चाहते हैं कि आपका बिजनेस जल्दी ग्रो करे, आपको अपना बिजनेस ऑनलाइन ज्यादा फैलाना है, तब एडवर्टाइजिंग बहुत ज्यादा ही एक मैंडेटरी प्रोपोजिशन बन जाता है आपके लिए। एक चीज ये एनालाइज करते वक्त हमने ध्यान में रखा था कि जो अगर समानता या फिर इक्वालिटी की मैं बात करूं या पैरिटी रखने के लिए, ये सारे सेलर्स जिन लोगों ने एडवर्टाइजिंग किया है, ये सब 3% अपना मंथली सेल्स का एडवर्टाइजिंग में लगा रहे थे कॉन्स्टेंटली। मतलब अगर आज उनकी सेल 1 लाख है, उन्होंने 3,000 रुपए दिए हैं, तो अगले महीने अगर उनकी सेल 2 लाख है तो वो 6,000 रुपए देंगे। और ये भी एक 3% एक बहुत ज्यादा ही एक इम्पोर्टेंट अमाउंट भी बन जाता है। बिकॉज अगर हम लोग बात करते हैं एडवर्टाइजिंग के बजट की, तो हमें लगता है कि तकरीबन हर एक को अपने जो मंथली सेल्स है उसका 3% एडवर्टाइजिंग में एज अ रोल बैक करते रहना चाहिए। ओके, ये तो हुई कि हमारी सेल्स ओवरऑल एडवर्टाइजिंग के लिए सेलर ने कैसा परफॉर्म किया, उनके सेल्स कैसे बढ़े। बट अब थोड़ा ये समझ लेते हैं कि जो एलआईडी होती है, जो प्रोडक्ट होती है, एलआईडी का फुल फॉर्म है लिस्टिंग आईडी। तो जो प्रोडक्ट आईडी जो होती है जिसपे हम एडवर्टाइजिंग चला रहे हैं, उस पे कैसा इम्पैक्ट होता है अगर हम एडवर्टाइजिंग करें तो एडवर्टाइजिंग बेसिकली क्या होता है कि उसका एडवर्टाइजिंग का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है विजिबिलिटी पे, क्योंकि एडवर्टाइजिंग जो है वो आपकी विजिबिलिटी को बूस्ट करती है, और जब कोई प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बूस्ट होती है तो उसके साथ ही साथ उसका सेल्स भी ज्यादा हो जाता है। तो अब हम थोड़ा समझते हैं कि एडवर्टाइजिंग विजिबिलिटी को और सेल्स को कैसे इम्पैक्ट करती है। तो ये समझने के लिए हमने एक चीज ध्यान में रखा है, वो है कि हमने उन सेलर्स को उन एलआईडीज को सिलेक्ट किया है जहाँ पे दोनों का जो परफॉर्मेंस सेट है वो बहुत सेम है, उनका सेम टाइप का क्लिक्स होते हैं, उनके सेम टाइप के कन्वर्जन है, उनके सेम टाइप के परफॉर्मेंस है, कैटलॉग भी सेम है। तो हमने ऐसे 2 सेगमेंट ऑफ एलआईडीज सिलेक्ट किए हैं जो बहुत इक्वल है आपस में। एंड देन हमने उनपे एक पे एड चलाया है और एक पे एड नहीं चलाया है। हमने पहले 3 वीक एनालाइज किया उनकी परफॉर्मेंस को, जहाँ पे हमें ये पता चला कि ये बहुत ज्यादा सिमिलर है। देन हमने 3 वीक के लिए ऐड चलाया उन पे, तो देखने के लिए कि ऐड का परफॉर्मेंस कैसा होता है, और उसके बाद हमने अगले 4 हफ्तों के लिए उन प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस को रीड किया कि एड खत्म होने के बाद वो परफॉर्मेंस कैसा करते हैं। तो अगर आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे कि जो विजिबिलिटी है और जो सेल्स है, दोनों ही 80 to 85% बढ़े रहते हैं, ना कि सिर्फ उस टाइम पे जब आप एडवर्टाइजिंग करते हो। बट एडवर्टाइजिंग खत्म होने के बाद भी जो विजिबिलिटी होती है या जो सेल होती है, वो एडवर्टाइज प्रोडक्ट की नॉन एडवर्टाइज प्रोडक्ट के कंपेयर में ज्यादा रहती है। इसका कारण ये है कि, एक सेकेंड, अच्छा, ठीक है। तो ये आपको मैं इसका रीजन जो है वो आगे वाले स्लाइड्स में समझाऊंगा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग जो है वो आपके और जो प्रोडक्ट की रैंकिंग है उसको इन्फ्लुएंस करती है। तो एक बार अगर रैंकिंग आप बढ़ा देते हो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू से, देन थोड़े टाइम में वो रैंकिंग धीरे धीरे नीचे आता है, वो एकदम से नीचे नहीं आ जाता है। तो अगर आप कंटिन्यूअसली एडवर्टाइजिंग करते रहोगे तो आपका जो रैंकिंग है वो थ्रू आउट बढ़ा हुआ ही रहेगा, और आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी और सेल्स जो है वो बढ़ी हुई रहेगी।
तो ये कुछ सेलर टेस्टिमोनियल्स है। तो बेसिकली एडवर्टाइजिंग सेलर्स को या एडवर्टाइजर्स को किस हिसाब से हेल्प करता है। तो किसी के लिए अगर विजिबिलिटी इंपॉर्टेंट है तो एडवर्टाइजिंग उनकी विजिबिलिटी ग्रो करने में हेल्प करता है। कहीं अगर आरओआई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तो एडवर्टाइजिंग आरओआई को इन्फ्लुएंस करने में, आरओआई बढ़ाने में आपकी हेल्प करता है। कहीं अगर आप जो बेसिकली आज का हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं, बहुत लोग इनसे रिलेट भी करेंगे कि जब आप फ्लिपकार्ट पे आते हो तो आपको पता होता है कि फ्लिपकार्ट पे सेलर की टियरिंग होती है, मतलब गोल्ड, ब्रॉन्ज और सिल्वर। तो आपको पता है कि जो हर एक जो आपका जो जंप होता है जब आप ब्रॉन्ज से सिल्वर में जाते हो या सिल्वर से गोल्ड में जाते हो, तो इसके साथ बहुत सारी फैसिलिटीज है जो आपको एडिशनली मिलती है बिकॉज ऑफ आपके सेलर टियरिंग के लिए। तो अगर कोई नए सेलर है या फिर किसी सेलर की टियरिंग अगर कम भी हुई है, पहले गोल्ड थी आज अगर वो ब्रॉन्ज भी है किसी कारण से, अगर आप एडवर्टाइजिंग यूज करते हो तो एडवर्टाइजिंग आपको हेल्प करता है आपके बिजनेस को जल्दी ग्रो करने के लिए और वो टियरिंग चेंज करने के लिए। तो हम ऐसे बहुत सेलर्स के साथ काम किए करते हैं जो शुरुआत के 3 महीने में ही ब्रॉन्ज से गोल्ड बन गए, बिकॉज उनका प्रोडक्ट अच्छा था, उनके प्राइसेस अच्छे थे, उनका इंटेंट अच्छा था और उन्होंने एडवर्टाइजिंग ले लिया सो दैट वो आपका जो जहाँ पे आप ऑर्गेनिकली पहुंच पाते जितने टाइम में, उससे शायद 2 गुना जल्दी टाइम में आप वहां पहुंच गए। तो डेफिनेटली एडवर्टाइजिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। अब एडवर्टाइजिंग कैसे आपको हेल्प करता है फ्लिपकार्ट में ग्रो करने के लिए। बेसिकली दो कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म्स पे आपने देखा होगा, आप तभी एडवर्टाइज कर सकते हैं जब आपके प्रोडक्ट पे बाय नाउ का बटन हो। मतलब जब आप ऑनलाइन जाते हो कुछ खरीदने के लिए, वहां पे ऐड टू कार्ट या बाय नाउ होता है। तो आपने कंपटीशन वेबसाइट्स पे ये देखा होगा कि अगर आपके प्रोडक्ट पे बाय नाउ नहीं है तो आप उस प्रोडक्ट पे एडवर्टाइज नहीं कर सकते हो। फ्लिपकार्ट में एडवर्टाइजिंग के साथ बाय नाउ बटन मिलता है आपको, which means that वो कहीं ना कहीं एज अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ अश्योरेंस काम करता है कि फ्लिपकार्ट का बाय नाउ बटन है, मतलब मैं रैंडमली कुछ नहीं ले रहा हूँ। सो स्पेशली उन केसेस पे जहाँ पे आपने देखा होगा कि ट्रांजिट टाइम सबसे ज्यादा होती है, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स है, कुछ कुछ सेलर्स है जिनका ट्रांजिट टाइम बहुत ज्यादा है। अब उनके लिए क्या होता है, जब एज अ कस्टमर कोई लॉग इन करता है तो बहुत बार कस्टमर इसलिए नहीं खरीदता है क्योंकि उसको लगता है 15 दिन बाद दिखा रहा है आएगा कि नहीं। बट जब आप देखते हो कि कोई प्रोडक्ट पे बाय नाउ बटन है तो वो ऑटोमेटिकली कस्टमर के जो माइंड है उसको एक पॉजिटिव वे में इन्फ्लुएंस करता है, एंड देन उसका एक कॉन्फिडेंस या एक अश्योरिटी बढ़ जाती है कि नहीं ये प्रोडक्ट तो आ जाएगा शायद, तो जो अल्टीमेटली उसके परचेज डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। उसके साथ ही आपको विजिबिलिटी मिलती है रेलेवेंट कस्टमर्स के लिए। अब रेलेवेंट कस्टमर्स बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, क्योंकि हमको बहुत लोग बहुत बार पूछते हैं कि फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट पे या एड जिन लोगों ने हमारे साथ किया हुआ है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि हम कीवर्ड पे क्यों नहीं बिडिंग करते हैं, हम लोग कीवर्ड पे क्यों नहीं बेट करते, बाकी कंपटीशन में तो कीवर्ड पे हो जाती है, हम कीवर्ड पे क्यों हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि फ्लिपकार्ट पे कीवर्ड लेवल टारगेटिंग होती ही नहीं है। मतलब फ्लिपकार्ट पे अगर आप देखोगे कीवर्ड टारगेटिंग है क्या, कि मैं कोई भी कीवर्ड को पकड़ लेता हूँ और मैं बोलता हूँ कि अगर ये कीवर्ड प्लेटफॉर्म पे वेबसाइट पे सर्च हो रहा हो तो मेरे वहां प्रोडक्ट दिखने चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे देखोगे कि अगर आप कैजुअल शू ढूंढते हो, मतलब मुझे अगर स्नीकर्स खरीदना है, मैं अगर स्नीकर खोजता हूँ, उसके साथ मुझे हवाई चप्पल दिखेगा, मुझे फ्लिप फ्लॉप दिखेंगे, मुझे किटोस दिखेंगे, मुझे सैंडल्स दिखेंगे, मुझे सॉक्स दिखेंगे, मुझे एंकलेट्स दिखेंगे। तो जिस किसी ने भी वो कीवर्ड को सिलेक्ट किया है ना अपने प्रोडक्ट एडवर्टाइज करने के लिए, उन सारे के प्रोडक्ट मुझे दिखेंगे। फ्रॉम अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, ये तो फ्रॉम एडवर्टाइजर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलता हूँ हाँ बहुत अच्छा है, मैं किसी को भी अपना प्रोडक्ट दिखा सकता हूँ। बट एक चीज हमें ये समझना है कि फ्रॉम अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैं कुछ ढूंढ रहा होता, अगर मुझे 20 में से अगर मुझे 10 या 11 प्रोडक्ट इररिलेवेंट दिख रहे होते, क्या मैं अपना परचेज करता? मैं शायद किसी और ब्रांड के स्पेसिफिक पेज पे चला जाता और जाके अपना परचेज डिसीजन आगे बढ़ा लेता। इसका मतलब क्या है कि जो लार्ज एडवर्टाइजर्स है या जो लोग एडवर्टाइज करके अपना प्रोडक्ट को पुश करने मांग रहे हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाएगा, बिकॉज कस्टमर देन अपना सर्च में बहुत फाइनाइट हो जाएगा। तो जहां पे एक अपॉर्चुनिटी थी प्रोडक्ट दिखाने की, शायद वो भी बंद हो जाएगा। फ्लिपकार्ट पे क्या होता है, फ्लिपकार्ट पे बेसिकली सिस्टम यही है कि जो ये मैंने पूरा चीज कहा कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको ई कॉमर्स के लैंग्वेज में बोलते हैं कस्टमर सर्च पेन। मतलब एक कस्टमर को कुछ ढूंढने में कितनी डिफिकल्टी हो रही है। फ्लिपकार्ट में क्या है कि फ्लिपकार्ट में जो कस्टमर सर्च पेन है वो हमारे लिए बहुत प्रायोरिटी एक मेट्रिक है, जिसके लिए अगर आप फ्लिपकार्ट पे कभी कैजुअल शू ढूंढते हो या स्नीकर ढूंढते हो, आपको सिर्फ स्नीकर दिखाएंगे, आपको ना हम लोग सॉक्स दिखाएंगे, आपको हम लोग कभी फ्लिप फ्लॉप्स नहीं दिखाएंगे, सैंडल्स नहीं दिखाएंगे। विच मीन्स दैट जो सर्च हो रहा है, अगर मेरा प्रोडक्ट उस सर्च के साथ रेलिवेंट है
तो मैं अपना प्रोडक्ट दिखा दूंगा, ठीक है। सो एक सेकेंड सेलर्स, एक सेकेंड प्लीज। हाँ, तो आपको आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको उसके हिसाब से मतलब सिर्फ वही प्रोडक्ट्स दिखेंगे जो कि आप ढूंढ रहे हो, ना कि वो जो आपके लिए इररिलेवेंट हो। तो इसी के लिए हम कीवर्ड लेवल पे बिडिंग भी नहीं करते हैं। हम बिडिंग करते हैं इस बात के लिए कि अगर आप एक प्रोडक्ट पे एडवर्टाइज कर रहे हो और उसकी रेलेवेंट सर्च हो रही है, तो हम आपके प्रोडक्ट को ऊपर पुश करने के लिए सर्च करते हैं, बिड करते हैं। स्मार्ट आरओआई कैंपेन, जैसा कि मैंने कहा, ये एक फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव है, ये कहीं और आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे या कहीं पे भी आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। सो बेसिकली क्या है कि आपको सिर्फ वही प्रोडक्ट्स दिखेंगे कि जो आपको आप उसी आरओआई को टारगेट कर सकते हो जो आपको लगता है कि आपके बिजनेस के लिए रेलेवेंट है। और ये सीपीसी के कैंपेन्स का ही एक हिस्सा है, बट यहाँ पे जो मेन टारगेट इंडेक्स बन जाती है वो आरओआई बन जाती है। तो आप कैंपेन ऐसे क्रिएट कर सकते हो कि मुझे आज एक कैंपेन मैंने क्रिएट किया है, मुझे 6 का आरओआई चाहिए, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उस कैंपेन को बैकएंड में ऑप्टिमाइज करेगा और आपको 6 का आरओआई दिलाने का ट्राई करता रहेगा। हायर सर्च रैंकिंग, जैसा कि मैंने कहा कि एडवर्टाइजिंग से आपकी रैंकिंग बूस्ट होती है। ये तो रहा बहुत ज्यादा एडवर्टाइजिंग ई कॉमर्स का हमने डिस्कशन किया। अब हम लोग एक बार एक चीज समझते हैं कि अगर हम लोग आज एक कोई शॉप में या दुकान पे जाते हैं, ठीक है, तो हम वहां पे कैसे शॉपिंग करते हैं। सपोज आज मुझे कोई टी शर्ट लेना है, मैं एक दुकान में जाऊंगा, मैं अपना साइज शॉपकीपर को बताऊंगा, वो मुझे शायद एक रैक दिखा दे जहाँ पे सारे टी शर्ट्स रखे होंगे। मैं वहां से सपोज 100 टी शर्ट्स में थे, कुछ मैं 5-6 टी शर्ट निकालूंगा जिनके मुझे एक बार मैं फिर से डिटेल में देखना चाहूंगा, बेसिस जो भी मुझे पसंद आया हो उस टी शर्ट का, शायद कलर पसंद आई हो, पैटर्न पसंद आया हो, कुछ भी हो, तो मैं उस टी शर्ट को निकाल के देखूंगा और उसके बाद मैं आइदर खरीदूंगा या फिर मैं नहीं खरीदूंगा। तो ये होता है एक ऑफलाइन का जो प्रोसेस का फ्लो होता है वही। ऑनलाइन में भी एग्जैक्टली सेम ही चीज होती है। ऑनलाइन में आपको कुछ डिटेल्स आपको मतलब जो कोई भी सर्च अगर होता है तो ऑनलाइन में भी सेम वे में सर्च होती है। तो यहाँ के आप देख रहे हैं कि कुर्तीज का सर्च है, यहाँ पे उसका पूरा पोर्टफोलियो दिखाया गया है कुर्तीज का, और जिसमें से एक जो प्रोडक्ट है वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू से यहाँ आई है। इसका मतलब ये है कि अगर ऑर्गेनिक सर्च की बात करें, अगर एडवर्टाइजिंग नहीं होता तो ये प्रोडक्ट शायद कहीं पे भी हो सकता था, दूसरे पेज में, तीसरे पेज में, बट सिंस इसके सेलर ने चूज किया है एडवर्टाइज करना, तो उसका प्रोडक्ट आज चौथे पोजीशन पे आया है। और ये टॉप स्लॉट, जैसा कि मैंने कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज अगर आप ग्लोबल ई कॉमर्स देखेंगे तो जो कस्टमर का जो परचेज होता है वो टॉप के 30 प्रोडक्ट के अंदर ही हो जाता है। तो ये 95 to 97% ऑफ द कस्टमर बिहेवियर ऐसा ही करता है कि जो टॉप के 30 प्रोडक्ट के अंदर से अपना प्रोडक्ट खरीद लेता है। तो उसके लिए जो होता है कि ऊपर आना और अपना प्रोडक्ट को विजिबल करवाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब विजिबल कैसे कराएं, तो बेसिकली ये रैंकिंग किससे डिसाइड होती है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि अगर एडवर्टाइजिंग नहीं है तो रैंकिंग कैसे डिसाइड होगी। रैंकिंग डिसाइड करते हैं 3 फैक्टर। पहला है क्लिक थ्रू रेट या सीटीआर, जिसका मतलब है कि जब मैंने वो 100 टी शर्ट देखे थे और जो 5 टी शर्ट मैंने निकाले थे, तो मैंने 100 टी शर्ट को 5 बार, 100 टी शर्ट को देखे थे मैंने, उनमें से 5 को निकाले थे। मेरे ही जैसे कुछ 10 लोग और आए थे जिन्होंने सारे टी शर्ट्स में से इन्हीं 5 टी शर्ट को बार बार निकाला था। तो ये जो प्रोडक्ट है जिसपे ज्यादा से ज्यादा लोग देख रहे हैं और ऑनलाइन की भाषा में ज्यादा से ज्यादा लोग क्लिक कर रहे हैं, इनका ये सीटीआर बन जाता है या क्लिक थ्रू रेट बन जाता है, कितनी बार वर्सेस आपका प्रोडक्ट दिख रहा है वर्सेस कितनी बार आपके प्रोडक्ट पे लोगों ने क्लिक किया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक बन जाता है। उसके बाद होता है कन्वर्शन। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है। क्यों? क्योंकि कन्वर्शन कितनी बार आपका लोग खरीद रहे हैं, तो एज अ प्लेटफॉर्म हम उन्हीं प्रोडक्ट को ज्यादा दिखाएंगे या वही प्रोडक्ट ज्यादा दिखेगा ऑटोमेटिकली जो कस्टमर ज्यादा से ज्यादा खरीद रहे हैं। थर्ड है क्वालिटी। क्वालिटी बहुत सारा एक मिक्स है बेसिकली, जिसमें आपका प्राइस पॉइंट, आपका कैटेलॉग, आपका इमेज, आपका बुलेट पॉइंट डिस्क्रिप्शन जो आपने डाला है वो सब कैसे है, वो सारी चीजें आपके क्वालिटी में आ जाती है। साथ ही साथ रेटिंग कैसे है प्रोडक्ट के, आपके सेलर रेटिंग्स कैसे है, आपके रिटर्न्स कितना होता है वो प्रोडक्ट, ये सारी चीजें क्वालिटी डिफाइन करती है।
तो जैसा मैंने कहा था कि ये जो सारी चीजें मैंने अभी कहा, क्लिक थ्रू रेट, कन्वर्शन, क्वालिटी, ये सारी चीजें जो होती है ये ऑर्गेनिक होती है। इनमें से कोई चीज को भी आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हो। ये जैसे ही उसके प्रोडक्ट का कोर्स वो जैसे लेता है प्लेटफॉर्म पे, उसी से अपने आप डिसाइड होता रहेगा। बट अगर आप देखोगे कि एडवर्टाइजिंग के क्षेत्र में क्या होता है, ये ऑर्गेनिक मैट्रिसेस तो रहती ही है, साथ ही साथ जो सीपीसी बिड होता है वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाता है, बिकॉज देन सीपीसी बिड कंट्रोल करता है कि आपकी प्रोडक्ट की रैंकिंग कैसे डिसाइड होगी, वो आपके रैंकिंग को इम्प्रूव करता है। ओके, तो एड्स क्या करता है हमारे लिए? एड्स बेसिकली ओवरऑल सेल्स को इम्प्रूव करता है हमारा, विच मीन्स कि सिर्फ उन प्रोडक्ट का नहीं कि जिन पे हमने ऐड चलाया है, बट आज अगर एज अ सेलर मुझे दिन के 100 ऑर्डर आ रहे हैं और मैंने एड्स चलाए हैं अपने प्रोडक्ट पे, तो क्या मैं अपना 100 की जगह उसको 150 या 200 ऑर्डर कर पा रहा हूँ, वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। न्यू अराइवल्स जो नए प्रोडक्ट है उनका ऑर्गेनिकली ऑब्वियसली क्लिक थ्रू रेट, कन्वर्शन, ये सब बिल्डअप होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए एड्स एक इमीडिएट बूस्ट बन जाता है जो उसकी रैंकिंग को हेल्प करता है इम्प्रूव करने के लिए। एंड ऑब्वियसली विजिबिलिटी तो आपको वो बढ़ाती ही है, बिकॉज एड का काम ही है कि आपका रेलेवेंसी और रैंकिंग स्कोर को इम्प्रूव करके आपकी विजिबिलिटी को बढ़ाते रहना। ओके, तो कुछ नई चीजें हैं हमने जो पीएलए पे लॉन्च की है, एडवर्टाइजिंग पे जो हमने लॉन्च की है। एक है सर्टिफिकेशन, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा अब आप होम पेज, प्रोडक्ट पेज और सर्च पेज के लिए अलग से अपने सीपीसी बिड्स डिसाइड कर सकते हो। पहले एक ही बिड होता था जिसके थ्रू से होम पेज और प्रोडक्ट पेज पे प्रोडक्ट्स पीएलए एड्स दिखते थे, बट अब उसके जगह आप डिफरेंटली अपना प्रोडक्ट, अगर आपको लगता है कि आपका कोई ऐसा वर्टिकल है जहाँ पे बहुत ज्यादा कस्टमर आते हैं, जिसके बहुत ज्यादा लोग परचेज करते हैं ऑनलाइन, तो आप उस प्रोडक्ट के लिए आप अपना होम पेज के लिए एग्रेसिवली बिडिंग कर सकते हो, आप सर्च पेज के लिए बिड कर सकते हो। सर्च पेज जहाँ पे आपका प्रोडक्ट अभी देख रहे थे हम लोग, वही वाला सर्च पेज होता है। प्रोडक्ट पेज, हर एक प्रोडक्ट का जो लैंडिंग पेज होता है उसके नीचे भी स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स करके एड्स के विजेट्स दिखते हैं। तो आप इन सारी चीजों का सारी चीजों में पार्टिसिपेट कर सकते हो और अपने हिसाब से आप इसका जो बजट एलोकेशन है वो भी कंट्रोल कर सकते हो। ओके, तो ये एक होम पेज का डमी है, वो प्रोडक्ट कैसे दिखता है होम पेज पे। तो वाटर प्यूरिफायर का हमने दिया हुआ है यहाँ पे। ये आपका फर्स्ट और सेकंड स्लॉट पे ऐड दिखते हैं। ये आपका बेसिकली सर्च लिस्टिंग पेज यही है, जहाँ पे आप अगर टी शर्ट सर्च करोगे तो प्रोडक्ट्स दिखने लगेंगे, उस पे फर्स्ट और सेकंड स्लॉट पे ऐड जाता है। हमने अब एडवर्टाइजिंग सेलर जो हब हमारा ऐप है उस पे एडवर्टाइजिंग के सारे फीचर्स लॉन्च कर दिए हैं। तो आप अभी कहीं पे भी अगर ट्रैवल भी कर रहे हो तो अपने कैंपेन्स को अपने मोबाइल ऐप से मैनेज कर सकते हो। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि अगर आप ऑफिस में नहीं हो तो कौन चेक करेगा, कौन रन करेगा। आप अपने सेलर हब ऐप से भी आप कर सकते हो। ओके, अब हम लोग समझते हैं कैंपेन क्रिएशन कैसे होता है फ्लिपकार्ट पे। कैंपेन क्रिएशन फ्लिपकार्ट पे एक थ्री लेवल प्रोसेस है, जहाँ पे आपको पहले प्रोडक्ट सिलेक्ट करने होते हैं, बजट करना होता है, फिर पेमेंट करके उसको चेकआउट करके कैंपेन एक्टिवेट करना होता है। तो प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के लिए अगर आप देखेंगे तो अगेन हमने एडवांस में देखा था कि ग्रोथ सर्च ट्रैफिक रिपोर्ट यूज करके कैसे सिलेक्ट करते हैं। अगर हम पहली बार कर रहे हैं या हमें पता नहीं है कि हमें कैसे करना है, तो इजीएस्ट वे है कि हमने यहाँ पे बहुत सारे रिकमेंडेशन के टैब्स बना के रखे हैं। हमने ऑल लिस्टिंग्स टैब्स बनाई है, हमने हाई पोटेंशियल लिस्टिंग बनाई है, हमने न्यू लिस्टिंग्स बनाई है। तो अगर आप इन फिल्टर्स का यूज करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके लिए एक वो फिल्टर लगा देगा जो हमने प्री डिफाइंड आपके लिए करके रखा है। सो आप उसके ऊपर ही अपना वो कर सकते हो, एडवर्टाइजिंग कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें आपके लिए फिर आप उसको यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको और फाइन ट्यून करना है और ज्यादा अंदर जाके आपको फिल्टर करना है, तो आप बाई कैटेगरी आपके पास ऑप्शन है फिल्टर करने का। बाई सेलिंग प्राइस आप कर सकते हो, बाई स्टॉक काउंट कर सकते हो, बाई डेट आप कर सकते हो। सो बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास जिसके थ्रू आप अपना प्रोडक्ट फिल्टर कर सकते हो। ये सारे हमने इसलिए बना के रखे हैं क्योंकि अब बहुत टाइम होता है कि बहुत सारे सेलर्स के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम चलाएं तो किस पे चलाएं, कि कहाँ हम ऐड चलाएं। तो उसके लिए हमने ये सारे फिल्टर ऑप्शंस रखे हैं। तो डेफिनेटली हाई पोटेंशियल लिस्टिंग्स, न्यू लिस्टिंग्स थोड़ा बड़ा कॉर्पस है जिसमें थोड़े से सिस्टम इंटेलिजेंस भी जाती है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको पता है कि अभी विंटर आने वाला है या अभी फेस्टिव त्योहारों का सीजन है, तो आपको अगर एथनिक पे या होम डेकोर पे कुछ करना है तो आप ऑटोमेटिकली इन सब कैटेगरी फिल्टर्स का यूज करके भी कर सकते हो एडवर्टाइज।
एक बार आपके जब प्रोडक्ट सिलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद आपको बजट और ड्यूरेशन करना होता है बेसिकली। तो वहाँ पे आपको अपने टाइम सिलेक्ट करना पड़ेगा, आप कितने टाइम के लिए कैंपेन चलाना चाहते हो, सीपीसी चलाना चाहते हो या स्मार्ट आरओआई चलाना चाहते हो। कैंपेन बजट आपको डिसाइड करना है। और आप अगर ये चाहते हो कि अगर आपने नहीं चाहते हो कि आपका एड बहुत एग्रेसिवली दिखे या सबको दिखे, या फिर थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो आप अपने स्पेंड्स के बारे में, देन आप इक्वली डिवाइड बजट भी करके उसको सेट कर सकते हो। अभी ऑटोमेटिकली इस प्रेजेंटेशन में नहीं है, बट लाइव सिस्टम में आई थिंक डेली बजट भी अभी ऑब्वियसली लाइव हो चुका है हमारे साथ। तो आप डेली बजटिंग का भी यूज कर सकते हो, जहाँ पे आपको ये जो एलोकेशन ऑफ द बजट है इसका ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। आप स्टार्ट डेट एंड डेट सिलेक्ट करके दिन का बजट चूज करके आप अपना कैंपेन लाइव कर सकते हो। तो एक बार जब आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर दिया, आपने बजट डाल दिया, उसके बाद आपको बिडिंग करनी होती है। जैसा कि मैंने कहा, ये एक नया फीचर है जहाँ पे आपको विनिंग बिड रेंज एड ग्रुप का भी दिखता है। विनिंग बिड रेंज आपको उस एड ग्रुप का बेस बिड और विनिंग बिड रेंज दिख जाता है। और उसके साथ ही आपके पास ऑप्शन होती है कि आप कितना परसेंटेज इस बिड के ऊपर आप अपना कितना परसेंटेज डाल के उस कैंपेन को लाइव करना चाहते हो। और आप ये चाहते हो कि अगर आप ये होम पेज, प्रोडक्ट पेज या किसी एक पर्टिकुलर एवेन्यू पे ज्यादा एग्रेसिवली अपने प्रोडक्ट शो करना चाहते हो कि नहीं। तो वो चीज आपको यहाँ पे ऑप्शन है एलोकेट करने का। अगर आप मल्टीपल एड ग्रुप्स में कर रहे हो, देन आपको बार बार ये परसेंटेज एलोकेशन करने की जरूरत नहीं है। आप अगर यहाँ पे एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स बना हुआ है, अप्लाई सेम कॉन्फ़िगरेशन फॉर ऑल एड ग्रुप्स। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ये जो आपने यहाँ पे बजट एलोकेशन किया है वही सारे एड ग्रुप्स के लिए सिलेक्ट हो जाएगा। बेसिकली बिड एलोकेशन होगा, बजट नहीं होगा। अगर आपने सपोज यहाँ बोला है कि मुझे यहाँ पे जैसे बिड में आपने रखा है कि मुझे होम पेज पे 50% एक्स्ट्रा चाहिए, सर्च पेज तो ये 100% जितना है उतना ही चाहिए, तो 0 रख दिया है, और यहाँ पे आपने कुछ और किया है, तो ये जो स्प्लिट है वो स्प्लिट बाकी एड ग्रुप्स में भी डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद बहुत सिंपल है, आपको अगर यहाँ से पेमेंट ऐड करके निकलना होता है, अगर आपके वॉलेट में बजट है तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, अगर नहीं है तो वो आपको पैसा लोड करने बोलेगा और आप उसके बाद चेकआउट कर सकते हो। ओके, अब सक्सेसफुल कैंपेन्स क्रिएट करने के लिए कुछ टिप्स है बेसिकली। मतलब आपको कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंटली और बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है जब आप कैंपेन्स क्रिएट कर रहे हो। पहला है कि आपको अपना इमेजेस और कैटलॉग दोनों अच्छा रखना होगा। आप रैंडमली अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है जिसका क्वालिटी स्कोर खराब है बिकॉज ऑफ कैटलॉग इमेजेस, तो वो आपका एडवर्टाइजिंग के थ्रू से भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। सेम थिंग इज विद प्राइसिंग ऑल्सो। अगर आप कोई प्रोडक्ट का एवरेज सेलिंग प्राइस फ्लिपकार्ट के ऊपर है 200 रुपया, और अगर आप वो प्रोडक्ट को 400 रुपये में बेचना चाहते हो और उस पर आप एडवर्टाइजिंग भी चलाते हो, तो नो मैटर कितनी ही बार आपका प्रोडक्ट दिखे एडवर्टाइजिंग के थ्रू, बट शायद कन्वर्शन होगा नहीं। तो प्राइसेस भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान में रखना है। जैसा कि मैंने कहा था, रिव्यूज और रेटिंग्स भी क्वालिटी स्कोर का हिस्सा है। तो जिन प्रोडक्ट्स पे अगर खराब रिव्यूज है तो उन पे एडवर्टाइजिंग नहीं करना ही सेंसिबल होगा, बिकॉज अगर खराब रिव्यू है तो कस्टमर रिव्यू देख के शायद प्रोडक्ट तक तो आ जाए, मतलब इमेज देख के, प्राइस देख के शायद प्रोडक्ट तक तो आ जाए, बट रिव्यूज देख के शायद उसको ना खरीदे। तो अगर जिन प्रोडक्ट्स पे खराब रिव्यूज है उनको एडवर्टाइजिंग नहीं करना ही लॉजिकल एक रीजनिंग है। और आप जिन प्रोडक्ट्स पे एडवर्टाइज कर रहे हो ये ध्यान में जरूर रखिएगा कि उसकी एनफ इन्वेंट्री हो आपके पास स्टॉक में। मतलब आपके पास अगर सिर्फ 4-5 प्रोडक्ट्स है, यूनिट्स है किसी प्रोडक्ट का, आप उस पर एडवर्टाइजिंग चला देते हो, तो वो 4-5 प्रोडक्ट्स शायद एक ही दिन में बिक जाएंगे और उसके बाद आपका एडवर्टाइजिंग कैंपेन भी बंद हो जाएगा और आपका जो सेल्स है वो भी आपको ज्यादा होता हुआ नहीं दिखेगा। तो हेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन प्रोडक्ट्स पे एडवर्टाइजिंग चलाओ जिसका आपके पास एम्पल स्टॉक हो। ओके, तो एडवर्टाइजिंग कैसे करनी है? बेसिकली एडवर्टाइजिंग को जो क्रिएशन का जो लॉजिक है या क्रिएशन का जो थियरी है वो एक फंडामेंटल के ऊपर बेस्ड है, जो है ऑब्जेक्टिव। तो जब आप कैंपेन स्ट्रक्चर करने का सोचते हो, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैंपेन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के आधार पे ही हम प्रोडक्ट्स को ग्रुप कर सकते हैं और उन पे कैंपेन चला सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली होती है सेल्स, विजिबिलिटी, आरओआई। ठीक है, तो ये एक स्लाइड है जहाँ पे हमने पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है कि आपकी ऑब्जेक्टिव किस टाइप के प्रोडक्ट में कैसा ऑब्जेक्टिव हो तो क्या करना चाहिए। ये स्लाइड आपको अपने सेलर लर्निंग सेंटर पे भी मिल जाएगी, और ये स्लाइड आपको
ये वीडियो सेशन का एक रिकॉर्डिंग मिलेगा, उस पे भी आपको ये स्लाइड अवेलेबल होगी। तो ये थोड़ा सा लिटरेचर है, आप यहाँ पे पढ़ लेना बेसिकली। तो आपको सबसे पहला चाहिए कि आपके प्रोडक्ट का एक टाइप होगा, उस प्रोडक्ट का आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव होगा मन में, उसके बेसिस पे आपको क्या करना है और क्या चीजें ध्यान में रखनी है वो करते टाइम पे। तो सीपीएक्स का मतलब सीपीसी कैंपेन है। तो अगर मैं टॉप कन्वर्टिंग प्रोडक्ट पे विजिबिलिटी के लिए कैंपेन करता हूँ तो मैं सीपीसी कैंपेन करूंगा। मैं सीपीसी कैंपेन अगर क्रिएट कर रहा हूं तो मैं ये ध्यान में रखूंगा कि कैंपेन में इनफ बजट लोडेड है, क्योंकि ये कैंपेन का प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अच्छा कन्वर्टिंग है, मतलब इनको ऑलरेडी अच्छा क्लिक्स आ रहे हैं। तो अगर मैंने ज्यादा पैसा नहीं रखा है यहाँ से सही से, तो ये क्लिक्स जल्दी आ जाएंगे और मेरा कैंपेन में शायद उतना मेरे को अच्छा परफॉर्मेंस ना दिखे। बाकी का आप थोड़ा सा अपने से जब आपको ये मिलेगा तो आप रीड कर लेना। बहुत ही सिंपल प्रेफर्ड एक्शन और कंसिडरेशंस है। ओके, अब हम लोग लास्ट सेगमेंट में आ जाते हैं हमारे आज के, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रिपोर्ट्स कैसे रीड करने हैं। बिफोर रिपोर्ट्स कैसे रीड करने हैं, हम ये समझते हैं कि जो टर्मिनोलॉजीज या जो नॉमेनक्लेचर्स रहते हैं हमारे रिपोर्ट्स में, उनका मतलब क्या होता है। तो जब हम रिपोर्ट निकालेंगे तो ये सारी चीजें हमें मिलेंगी। तो अगर हमें ये नहीं पता होगा कि इन सब चीजों को कैसे रीड करना है या इनका मतलब क्या होता है, तब तक शायद हम अपना रिपोर्ट सही से नहीं पढ़ पाएंगे। तो पहला होता है एड यूज। इसका मतलब होता है कितनी बार आपका प्रोडक्ट दिखाया गया। जैसे हमने जब पहला सर्च किया था, हमने जो कुर्ती की जो सर्च की थी और हमने चौथा नंबर पे देखा था एक कुर्ती है और एक उसके ऊपर एड लिखा हुआ है। तो जहां पे वो किसी कस्टमर ने वैसे दिखा, इसका मतलब ये है कि वो एक एड व्यू बन गया मेरे लिए। सेकंड होता है एक्शन। अब जब एड व्यू होता है उसका एक स्टेप डीप होता है, जब मैं वो जाके कुर्ती पे क्लिक करूंगा और कुर्ती के जो लैंड प्रोडक्ट पेज है उस पे लैंड करूंगा। तो जब मैं वो क्लिक करता हूँ, वो क्लिक को आइदर क्लिक एक्शन या फिर हम लोग जब लैंड कर जाते हैं उस पेज को पीपीवी बोलते हैं। तो ये तीनों में से कोई भी अगर चीजें अगर हम लोग आइडेंटिफाई करें तो उसका मतलब एक्शन ही होता है। उसके बाद होता है एक्शन रेट। एक्शन रेट का मतलब है क्लिक थ्रू रेट, जो हमने देखा था, कितनी बार आपका प्रोडक्ट व्यू हुआ वर्सेस कितनी बार आपके प्रोडक्ट पे क्लिक हुआ, उसी को हम एक्शन रेट बोलते हैं या क्लिक थ्रू रेट बोलते हैं। एड स्पेंड बेसिकली आपके कितने क्लिक्स हुए मल्टीप्लाइड बाय आपका कितना सीपीसी था, वो अगर आप करोगे तो वो आपका एक्शन रेट हो जाता है, एड स्पेंड हो जाता है, सॉरी। कन्वर्जन रेट है कितनी बार आपके प्रोडक्ट पे क्लिक हुआ वर्सेस कितनी बार आपका प्रोडक्ट खरीदा गया, वो आपका प्रोडक्ट का कन्वर्जन रेट हो जाता है। टोटल ऑर्डर्स बाय टोटल एक्शन। टोटल ऑर्डर्स मतलब कितने आपके टोटल यूनिट्स बिके एज अ पार्ट ऑफ द कैंपेन। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों दो टाइप के प्रोडक्ट्स लिंक होते हैं कैंपेन के सेल्स के साथ, तो दोनों का मिला के जो होता है वो टोटल ऑर्डर होता है। और उसको उससे आप कितना रेवेन्यू जनरेट करते हो वो आपका टोटल रेवेन्यू बन जाता है। तो अगर मेरा एवरेज सेलिंग प्राइस है 500 रुपया और मैंने 100 प्रोडक्ट बेचे हैं, तो 500 इंटू 100 बन जाएगा मेरा रेवेन्यू। आरओआई हमारा डे टू डे बिजनेस का बहुत एक कॉमन टर्म है, जिसका मतलब है हमने कितना स्पेंड किया वर्सेस हमने कितना उसका कितना रेवेन्यू कमाया। सो टोटल रेवेन्यू जो हम कमाते हैं डिवाइडेड बाय अगर हम लोग कितना हमने स्पेंड किया या हमारा टोटल जो एड स्पेंड है वो करेंगे तो तुम्हारी हमारी आरओआई बन जाती है। तो अब हम देखते हैं कि ये मेट्रिसेस हमें कहाँ मिलेंगे। तो ये मेट्रिसेस आपको आपके एडवर्टाइजिंग के अंदर ही मिलेंगे, जहाँ पे आपके पास रिपोर्टिंग का ऑप्शन होता है डाउनलोड करने का। तो जैसा कि मैंने कहा था, ये सारे नंबर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। ये सारे नंबर्स 3 लेयर में आपको मिलेंगे। आपको ये सारे नंबर्स एक कैंपेन के लेवल पे मिलेंगे, आपको ये सारे नंबर्स एक एड ग्रुप के लेवल पे मिलेंगे और आपको ये सारे नंबर्स एक प्रोडक्ट के लेवल पे भी मिलेंगे। तो कैंपेन का ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो हमें देखने में इजी हेल्प आउट करेगा कि कैंपेन कैसे परफॉर्मेंस कर रहा है, ओवरऑल कितनी स्पेंड ऑन ट्रैक है कि नहीं। अगर हमने 5,000 रुपए लगाए हैं किसी कैंपेन पे तो उसका खर्चा ट्रैक पे है कि नहीं, जो रेवेन्यू आ रहा है वो ट्रैक पे है कि नहीं, आरओआई सही है कि नहीं, क्लिक थ्रू रेट सही है कि नहीं। तो कैंपेन के ओवरऑल व्यू से हमें ये मिल जाएगा। बट अगर हमें ऑप्टिमाइजेशन करना है तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम प्रोडक्ट के लेवल पे जाके कैंपेन को रीड करें। ये जो सारे रिपोर्ट्स है, ये अगर हम लोग एक प्रोडक्ट के लेवल पे जाके रीड करेंगे तो वो मुझे ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करेगा। मतलब जो एडवर्टाइजिंग का कैंपेन का जो व्यू है या जो एड ग्रुप का व्यू है, वो मेरे लिए अच्छा है जानना, बट वो मुझे कुछ आगे हेल्प नहीं करेगा। बिकॉज जब तक मैं ये नहीं समझूं कि ये पूरा मैट्रिसेस प्रोडक्ट वाइज कैसे डिवाइडेड है, तब तक मैं शायद अपना सही एक्शन नहीं ले पाऊंगा।
ओके तो कैंपेन के अलावा हमारे पास और एक दो चीजें जो है वो नई डेवलपमेंट्स है रिपोर्टिंग में। बेसिकली एक प्लेसमेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट और सर्च टर्म रिपोर्ट है जो हमने लॉन्च किया है। प्लेसमेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट है कि आपने अगर अलग अलग सीपीसी बिड लगाए हैं होम पेज के लिए, प्रोडक्ट पेज के लिए और सर्च पेज के लिए, तो हर एक पेज पे वो कैंपेन कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर वो होम पेज पे आपने पैसा दिया है तो होम पेज पे उसके कितने एड व्यूज आ रहे हैं, कितना पैसा आ रहा है, कितनी आरओआई है, कितना क्लिक्स मिल रहा है। अगर आपने प्रोडक्ट पेज पे लगाया है तो उस पेज में वहां पे आपको कैसी विजिबिलिटी मिल रही है, कैसा सेल्स मिल रहा है। तो वो सारे रिपोर्ट जो है इंडिविजुअली हर एक एवेन्यू का जो होता है, अगर मैं बोलूँ तो वो आपको प्लेसमेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट में मिल जाएगी। सर्च टर्म रिपोर्ट भी हमारा एक बहुत नया एडिशन है जिसको आपने लॉन्च किया था अगस्त के महीने में। इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि प्लेटफॉर्म में आपके प्रोडक्ट्स कौन से सर्चेज में कैसे दिख रहे हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, आपको समझने में इजी होगा। से सपोज आज अगर मैं सर्जिकल ग्लव्स बनाता हूँ और मैं अगर ये रिपोर्ट डाउनलोड करता हूँ, ये इसमें मैं देखता हूँ कि जो मेरा सबसे ज्यादा खर्चा है और मेरा सबसे कम जो रिटर्न है वो ग्लव्स में है। बिकॉज ग्लव्स मेरे लिए रेलेवेंट शायद क्वेरी है नहीं, बिकॉज ग्लव्स में शायद लोग जिम ग्लव्स खरीदने आ रहे हैं, क्रिकेट ग्लव्स खरीदने आ रहे हैं, बाइकिंग ग्लव्स खरीदने आ रहे हैं, कुछ भी खरीदने आ रहे हैं। उसमें मेरा सर्जिकल ग्लव्स दिखता है तो लोग, मेरा प्रोडक्ट तो दिख जाता है, लोग क्लिक भी कर देते हैं, बट मुझे उससे रिटर्न या उससे सेल कुछ नहीं आ रही है। तो देन वैसे ऑर्गेनिक जो कीवर्ड्स हो रहे हैं जहाँ पे हमें ज्यादा हमें मनी हमको खर्चा होता हुआ दिख रहा है विद नो रिटर्न्स, हम उनको नेगेटिव कीवर्ड्स बना के अपने आगे के कैंपेन में यूज कर सकते हैं ताकि हम अपने पैसे को चैनलाइज कर सके। तो ये इंपॉर्टेंस है सर्च टर्म रिपोर्ट की, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है क्योंकि आपको ये हेल्प करेगा समझने की कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, किन किन सर्चेस पे आपके प्रोडक्ट्स दिखते हैं फ्लिपकार्ट पे। तो ये रिपोर्ट आपको कैंपेन लेवल पे और एड ग्रुप पे अवेलेबल है। जैसा मैंने की कहा था कि हमारा जो परफॉर्मेंस होता है, जो हम कैंपेन की जो ऑप्टिमाइजेशन देखते हैं वो हम एलआईडी लेवल पे देखते हैं। अब वो हम एलआईडी लेवल पे कैसे देखते हैं, उसका सिंपल सा ये वे है कि हमें 3 मैट्रिसेस है यहाँ पे जो दिखाई हुई है, एक्शंस, एक्शन रेट और आरओआई। हमें ये 3 चीजें जो है, ये 3 चीजें हमें रिपोर्ट से मिल जाएगी। हमें एक्शंस मिल जाएंगे, हमें एक्शन रेट मिल जाएगा, हमें आरओआई मिल जाएगा। उसके बाद जो ये एलआईडी क्लासिफिकेशन है वो हमें खुद से करना है। ठीक है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे कौन से वाले क्लासिफिकेशन का एक हिस्सा है। उसके बाद जो सजेस्टेड एक्शन है वो हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो जैसा कि मैं बोलूं अगर, तो ये जो रिपोर्ट है ये 150 प्लस, ये 2 हफ्ते का रिपोर्ट है। तो कैंपेन्स अगर आप चालू करते हो तो मिनिमम ट्राई करना 2 हफ्ते से 3 हफ्ते उसको चलने दो, उसके बाद कुछ चेंजेस करो या उसके बाद उसको बंद करो, तब तक उसको एटलीस्ट चलने देना। बिकॉज बड़ा रिपोर्टिंग सही से कैप्चर नहीं हो पाती है क्योंकि उतना मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड होता है कैंपेन को अच्छा परफॉर्म करने के लिए। तो हाँ, तो अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे प्रोडक्ट को 150 से ऊपर क्लिक्स मिले हैं, इसका एक्शन रेट या क्लिक थ्रू रेट बहुत हाई है, मतलब बहुत ज्यादा लोग इसको देख रहे हैं, और इसका आरओआई भी बहुत हाई है। इसका मतलब ये क्लासिफिकेशन क्या है, ये हाई आरओआई प्रोडक्ट है। इस पे नया कैंपेन्स मुझे चलाना है और एक्शंस के बेसिस पे मुझे कैंपेन स्प्लिट करना है। इसका मतलब है कि अगर मैं एक कैंपेन निकालता हूँ उसमें मैं बोलता हूँ कि मेरे पास 10 प्रोडक्ट है जिनकी 150 से ऊपर क्लिक है, तो एक प्रोडक्ट का 150 क्लिक है, एक प्रोडक्ट का 300 क्लिक है, एक प्रोडक्ट का 700 क्लिक है, एक प्रोडक्ट का 750 क्लिक है, एक प्रोडक्ट का 3000 क्लिक है। तो ये बेसिस ऑफ एक्शंस का मतलब ये है कि मैं जो ये 150 से ऊपर तो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ कि हाई ही है, राइट। तो मैं 150 के ऊपर मैं बकेट बना दूंगा और उन बकेट के हिसाब से कैंपेन चलाऊंगा। जैसे कि मैंने 150 से मे बी 300 या 500 का एक बकेट बनाया, उसके ऊपर एक कैंपेन चलाया, 500 से 1000 का बनाया, उस पर एक कैंपेन चलाया, 1000 से 1500 का ऐसे बनाया, या फिर मैं 300, 700, 1200, 2000 ऐसे करके बना लूं। तो मैं बेसिकली जितने एक्शंस है या जितने क्लिक्स है उसके बेसिस पे प्रोडक्ट्स को बांध के उसके ऊपर कैंपेन चलाऊंगा। ओके, सिमिलरली बाकी सारे एक्शंस भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। एक इंटरेस्टिंग है कि अगर आपको कहीं पे भी एक्शन रेट, आपको परफॉर्मेंस प्रोडक्ट के खराब होते दिख रही है, मतलब यहाँ पे भी आप देखोगे कि अगर लो परचेज इंटेंट अगर आपको दिखता है, ठीक है, इसका मतलब है कि लोग प्रोडक्ट पे तो आ रहे हैं बट वो खरीद नहीं रहे हैं। तो अगर लो परचेज इंटेंट कहीं पे भी आपको दिखता है कि कस्टमर का कोई भी प्रोडक्ट के लिए है आपका, तो उस केस में आप कैंपेन को इमीडिएटली मत कैंपेन पे फोकस करो, आप प्रोडक्ट के कैटलॉग पे फोकस करो। जैसे आप उसकी इमेज, प्राइस, प्रोडक्ट रेटिंग, आप इन सब पे चीजें करो।
यहाँ पे भी आप देखो कि लो परचेज इंटेंट है, यहाँ पे फिर से वही प्राइस, इमेज, रेटिंग, वो सब आ गई। तो पहले आप इसको फिक्स करो, उसके बाद कैंपेन चलाओ, बिकॉज देन वो आपके लिए हेल्प करेगा। अगर आप लो परचेज इंटेंट वाले प्रोडक्ट पे पैसा डालते रहोगे, देन वो पैसा खर्चा होता रहेगा और आपको ज्यादा कुछ गुडनेस मिलेगी नहीं। तो ये स्लाइड भी आपको मिल जाएगी जब आपको इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा सेशन का, और ये स्लाइड ऐसे इंडिविजुअली सेलर लर्निंग सेंटर पे अवेलेबल है, तो आप चाहो तो वहां से उसको यूज करके अपने कैंपेन्स क्रिएट करते टाइम इससे रेफरेंस यूज कर सकते हो। ओके, स्मार्ट आरओआई हम आज नहीं कवर करेंगे, तो स्ट्रेट अवे हम लोग आज के क्यूएनए में चले जाते हैं। ओके, हरिंद्र जी का क्वेश्चन है कि what is the best way to increase ROI? Currently we have only 1 to 3 ROI and that is very less. Earlier it was 7 or 8. हरिंदर जी, there are multiple reasons for एक कैंपेन के ROI को खराब होने के लिए। इमीडिएटली अगर आप फैक्टर वाइज देखोगे कि ऐसे कैंपेन आपका ROI आप ठीक कर सकते हो, इमीडिएटली अगर आपको वो सॉल्व करना है तो आप अपने सीपीसी के जो बिड्स है वो रिड्यूस कर दो, और जो नॉन परफॉर्मिंग एलआईडीज है, जो मैंने कहा ना कि जहाँ पे 150, जहाँ पे वो लो परचेज इंटेंट वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जहाँ पे आपको क्लिक्स आती है पर सेल्स नहीं आते हैं, उन सब प्रोडक्ट्स पे फिलहाल कैंपेन मत चलाओ। तो ये दो चीजें अगर आप करोगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके कैंपेन की आरओआई को इम्प्रूव करने में पॉसिबल होगा। ओके, मिस किंजल गाला, आई थिंक आपका क्वेरी इज एड्रेस्ड नाउ। आई most of the discussions that I've had is revolving around your query. I'm glad that you are attending this for the first time and you are trying to associate with us. So a lot of these materials are available आपके sellers and learning center पे and आपके certification पे। So the request would be that आप please उनको complete कीजिए and you will have a fair bit of knowledge about how to run ads on Flipkart. Okay, Sumit Chaudhary ji ka question hai, is the Flipkart ad certification course payable? No sir, it is absolutely not payable. It is there on the platform free of cost. So आप अगर करोगे, there is no cost that you pay to us for that. Ashish Sharma ji, difference between CPC and Smart ROI is basically CPC campaign targets to achieve a particular sale and visibility for the campaign. Smart ROI में आप visibility और sale को objective नहीं consider करते हो. It's a campaign which you create with an only ROI in mind. So it is useful for sellers who basically, अगर मैं बोलूँ कि जहाँ पे अगर मैं लैपटॉप के रीसेलर्स की बात करूँ, तो लैपटॉप में रीसेल मार्जिन बहुत लो होता है, तो वैसे सेलर्स के लिए बहुत दिक्कत हो जाता है कि अगर उनका बजट ओवरशूट हो गया तो इट इज इम्पोर्टेंट कि वो अगर स्मार्ट आरओआई चलाए तो उसका कैंपेन अच्छे से परफॉर्म करेगा। Ravindra Kapoor ji, the minimum amount to start an advertisement is 1,000 rupees. That's the minimum amount that you can quote in a campaign. But do keep in mind that अगर आप 1,000 rupees के कैंपेन बनाते हो, then उसमें 4 से प्रोडक्ट मत डाल, ज्यादा मत डालो, बिकॉज अगर आप देखोगे कि सीपीसी कैंपेन्स का जो लॉजिक होता है, सीपीसी कैंपेन्स में पर प्रोडक्ट आपको मिनिमम 250 रुपया रखना ही पड़ता है 2 हफ्ते से 3 हफ्तों के लिए। तो अगर आप 1,000 रुपए की कैंपेन भी क्रिएट करते हो, डू नॉट क्रिएट इट विथ maybe 20-30 odd products. Please create with not more than 4 products a 1,000 rupee campaign. No, there is no default bid as per se for homepage also. जो base bid होता है, that is the bid. Then आपको quote करना होता है with a percentage increase of everything. So again, a question from Mr. Ravindra Kapoor: how do we check our campaign is successful or not? So this is based on your objective of the campaign, right? तो ये आपके objective के ऊपर depend करता है। हमारे लिए it is your business. आपको पता होगा कि आपका क्या objective है। आप चाहते हो कि अगर आप ads करते हो, आप चाहते हो कि आपके नंबर ऑफ यूनिट्स जो सेल हो रहे हैं वो बढ़े, आप चाहते हो आपका आरओआई बढ़े, आप चाहते हो आपका सेल का अमाउंट बढ़े, तो जो आप चाहोगे अगर वो अचीव हो रहा है, देन इट इज अ सक्सेसफुल कैंपेन।
Typically a successful campaign is where you get both clicks and conversions, but if that is not happening, then you have to work around the campaign, but the end goal is something that you will have to decide what is the best successful campaign for you, जहाँ पे आपको number of units ज़्यादा मिल रहे हैं या फिर जहाँ पे आपको ROI ज़्यादा मिल रहा है. Okay, if there are multi-seller on a single product and if I advertise a product, what will be the impact? Will I be benefit or the seller, or all the sellers will get benefit? Good question, Mr. Ravi Dhanuka. So basically, advertising at Flipkart runs on a LID level, listing ID. So listing ID is a unique ID as per the seller account only. The product where you say multiple people are selling, उसका जो ID होता है उसको हम लोग FSN ID बोलते हैं. When you latch on to an FSN, and there is a unique identity that gets created for that product in your portfolio also, which is called a listing ID. So when you advertise on a listing ID, so only you will benefit and no one else. वो system will take care of that. Okay. To start with, should I go with CPC campaign or Smart ROI campaign? Ms. Jaya has asked the question. So Ms. Jaya, to start off with, you should definitely try CPC campaigns because new launches, new products, new seller will not get the required or the desired growth if they go with a Smart ROI approach. Your main aim for any new product or a new seller is to gain visibility. And when we talk about visibility, the only possible way to achieve that is CPC campaigns and not Smart ROI campaigns. Ms. Rashi, we do not have, as I told in the early part of the session, there is no keyword level logic that we apply on the platform. So there is nothing that is built up to provide keywords or search details. From a running campaign, you can use the search term report to understand that how are your products performing, and a bit deeper into it, if you want to know how are your products with regards to clicks and conversion, you can go on your growth tab on the seller dashboard, and inside that you will have search traffic report. You can use the search traffic report to judge the products there. Okay, an excellent question from Mr. Paresh Patel. If the product has both size and color variation, how do we address that? This will be my last question for the day because this is a very important question and everyone should understand. For everyone's convenience, I'll take this question in Hindi. तो Mr. Patel का question ये है कि हम लोग अगर किसी प्रोडक्ट पे साइज और कलर का वेरिएशन है तो उस पे हम लोग कैसे एडवर्टाइज करें. दो वेरिएशन टाइप है. जो साइज का जो वेरिएशन होता है उस पे जो आपका बेस्ट सेलिंग साइज है आप उसी पे एडवर्टाइज करो, क्योंकि जो प्रोडक्ट का अगर साइज चेंज होता है, ऐसे हमें समझना ये पड़ेगा कि किस प्रोडक्ट में शायद साइज अलग होगा. एक टी शर्ट पे हो सकता है, एक जूते पे हो सकता है. तो एक जूते का एग्जांपल ले लेते हैं. तो अगर मैं बोलता मल्टीपल जूते के साइजेस पे एडवर्टाइज करता हूँ तो हर एक साइज का अलग एलआईडी होता है. तो अगर मैं वो एलआईडी यूज करता हूँ साइज वाला, इसका मतलब क्या होगा, जब अगर कोई जूता सर्च करता है तो मुझे तीन चीजें दिखती है प्रोडक्ट की. प्रोडक्ट का इमेज दिखता है, प्रोडक्ट का प्राइस दिखता है और प्रोडक्ट का टाइटल दिखता है, जब सारे प्रोडक्ट्स मुझे रैंकिंग पेज में दिखते हैं. तो अगर उसमें मैंने मल्टीपल साइजेस में एडवर्टाइज कर दिया, देन ये होगा कि सेम प्रोडक्ट जो है मुझे हर साइज के थ्रू से अलग अलग बार बार दिखता रहेगा. तो मेरे लिए वो बेसिकली लॉस है, क्योंकि अगर कस्टमर को मैं कोई भी अपना बेस्ट सेलिंग साइज दिखा के अपनी प्रोडक्ट पेज पे ले आऊं, परचेज के टाइम पे वो ऑटोमेटिकली अपना प्रेफर्ड साइज या रेलेवेंट साइज सिलेक्ट कर सकता है. तो इसीलिए साइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम सिर्फ सबसे अच्छे साइज पे एडवर्टाइज करें, सबसे बेस्ट सेलिंग साइज पे एडवर्टाइज करें. और कलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि कलर के लिए ये करना है कि सारे जो आपके कलर्स हैं उन सब पे एडवर्टाइज करो. बिकॉज क्या होगा कि जैसा कि मैंने कहा कि जब सर्च रैंकिंग की जो पेज आती है उस पे तीन चीजें दिखती है. फोटो,
नेम ऑफ द प्रोडक्ट, टाइटल ऑफ द प्रोडक्ट एंड उसका प्राइस क्या है। तो ऐसा हो सकता है कि फोटो में अगर किसी कस्टमर को व्हाइट टी शर्ट नहीं पसंद आया हो, उसी ब्रांड का थोड़े देर बाद अगर उसको ब्लू टी शर्ट दिखे सेम पैटर्न में, तो शायद कस्टमर को वो पसंद आ सकता है। तो कलर के लिए अगर हम मल्टीपल कलर्स पे अगर एडवर्टाइज करते हैं तो वो हमारे लिए जो अपॉर्चुनिटी है उसको बढ़ा देता है। अगर हम मल्टीपल साइजेस पे सेम प्रोडक्ट के एडवर्टाइज करते हैं तो वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी साइज को छोटा कर देता है। तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बाय द वे मिस्टर पटेल। या अमित जैन जी का क्वेश्चन है, व्हाट इज अ गुड कन्वर्शन रेट? Conversion rate again, it is, there is nothing called as a good or bad, because Flipkart, as I told, it is a very level playing ground. So hence we do not benchmark conversions, click-through rates at a vertical or at a category level. We typically want sellers to advertise and to build around their own product and their own portfolio in the best possible matrices that they think should be applicable for theirs. Yeah. Okay, I think most of the questions are repetitive, or a lot of questions which I would have not answered. आप अगर देखोगे ये वेबिनार का रिकॉर्डिंग सेशन जब आप देखोगे तो आपको उनके सारे आंसर्स मिल जाएंगे, इसलिए शायद मैंने उनको स्किप कर दिया है। इन केस नॉट, हम लोग शायद नेक्स्ट वीक एक और सेशन होस्ट करेंगे, जिसमें हम लोग आई थिंक फेस्टिव सीजन के या बिग बिलियन डे के पहले हमारा वो लास्ट सेशन होगा, हम लोग जहाँ पे फेस्टिव की बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करेंगे। तो रिक्वेस्ट आप लोग सब उसके लिए ज्वाइन करो। एंड या विद दिस आई थिंक I'm done from my side. Thank you all so much for joining. Thanks for taking out time and joining in week after week as we kept scheduling this session. I wish you all the best for the upcoming month, because the next 2 months are going to be probably the biggest months for the e-commerce industry in India. So yeah, looking forward for all of your participation, and definitely I'm sure we are all going to create history together this time. Thank you so much. Ria, over to you. Thanks a lot, Umang. We are really glad that Umang was able to answer all the queries, and Umang has explained everything very well. So thank you very much, Umang. And I would request all the attendees, before ending this session, please share a small feedback with us and help us understand how was today's webinar experience for you. Was it helpful? So the poll is visible on your screens now. I request all the attendees to please address the poll and share your feedback. Thank you very much for your kind feedback, everyone. So it's time for us to end the session here. We wish to see you all again soon in other sessions as well. I'm your host, Riya, signing off for the day, and thank you very much for the compliment. Have a great day ahead, everyone.